Good morning, friends. Uh, myself, Kedar Badega, and this is the our fifth lecture of our series of the material science and metallurgy. In the previous lecture, we are start the new chapter of our material science and metallurgy, right? Which is the basic understandings of the non-destructive testing. Basic understanding of the non-destructive testing. In the previous lecture, we study the different concept of the non-destructive testing. What is the meaning of the non-destructive testing? What is the usefulness of the non-destructive testing? Advantages, disadvantages, different kind of the processes which is included in the non-destructive testing, right? Then in previous lecture we start the two techniques of the non-destructive testing. The first technique, which is the visual testing, and second, which is the uh, dye penetrant testing, which is also called as a liquid penetrant testing, or which is also called as a penetrant testing. So which is the DPT, that is the dye penetrant testing, then the LPT, which is the liquid penetrant testing, and last, which is the penetrant testing, which is the PT, right? So uh, you have to just remember that the technique which is working on the different kind of the principle, which is called as a the PT technique, which is working on the capillary actions, right? The technique of the PT, which is working on the capillary actions. So in the today's lecture, we start the another technique of the non-destructive testing, which is the material particle testing, which is the which is the magnetic particle testing. Sorry, by mistake, which is the material part. Which is the magnetic particle testing. So the technique number 3, which is the magnetic particle testing. So we start with the presentations of the MPT. This method is suitable for the detections of the surface and near surface discontinuities in the magnetic material. यानी ये जो चीज़ है ये किसके लिए हेल्पफुल हो सकती है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है वो अगर मटेरियल के अंदर कोई भी डिफेक्ट है तो उसके सरफेस के ऊपर डिफेक्ट है और वेरी क्लोज टू द सरफेस, यानी उसके नज़दीक के डेप्थ के अंदर नज़दीक के 2 या 3 mm तक अगर कोई डिसकंटिन्यूटीज़, अदर कोई डिफेक्ट, अदर कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम्स, सम काइंड ऑफ द bubbles or some kind of the crack is there, so we can able to find the defect with the help of the magnetic particle testing. But the limitation of this technique is that that is only applicable for uh, which is only material for the magnetic material, the material which is magnetic in the nature, राइट? जो भी फेरस मटेरियल है, अब फेरस मटेरियल में आपको बोलूँगा तो आप फेरस मटेरियल से काफ़ी कुछ वाकिफ़ है. हमने जब इंट्रोडक्शंस स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शंस में जब क्लासिफिकेशन किया था, द क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स, एट दैट टाइम वी thoroughly discuss that what is the meaning of the ferrous metal और what is the meaning of the नॉन फेरस मेटल. तो ये जो टेस्ट है वो सिर्फ फेरस मटेरियल के लिए, जिसके अंदर आयन कंटेंट है, यानी बेसिकली जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक इन द नेचर है, उसके ऊपर ही ये टेस्ट है वो पॉसिबल हो सकता है. मेनली द फेराइट स्टील एंड आयन. द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग MPT is a non-destructive testing method which is used to detect the detections, which is used for defect detections. ये defect को detections के लिए use होता है, find out करने के लिए. MPT is a fast and relatively easy to apply. Fast and relatively easy to apply. The material and the surface preparation is not as much critical as it is same for the another NDT methods. जो बाकी सारे जो NDT मेथड्स है उसके कंपैरिजन्स में यहाँ पे जो है वो लिमिटेड सरफेस प्रिपरेशंस या फिर जो बोलते हैं हम लोग के preparations for the testing which is required in the magnetic particle testing. Next, now what happen in the magnetic particle testing, ये process जो है ये वर्क कैसे कर रहा है? तो आपको एक फिगर दिख रहा है, तो फिगर के अंदर दो, एक नॉर्थ और एक साउथ, ऐसे दो पोल है जो मैग्नेटिक पोल है, राइट? उसके ऊपर जो एक जो प्रॉप आपको जो हैंडल जैसा दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो हैंडल वहीं से पकड़ के आपको जो आपका मटेरियल है
उसके ऊपर जो है ये आपको पूरा जो ये दो जो पोल है ना, जो वर्टिकल जैसे आपको जैसे खंभे जैसे दिख रहा है, वो छोटे छोटे खंभे होते हैं, वो आपको मटेरियल के ऊपर ऐसे घुमाना है। और मटेरियल के ऊपर आपको फेरोमैग्नेटाइज पाउडर है वो उसके ऊपर स्प्रेड करना है। अब जैसे ही आप फेरोमैग्नेटाइज पाउडर स्प्रेड करके ये जो प्रॉब है, ये जो हैंडल है, उसको आप मटेरियल के ऊपर घुमाओगे, तब क्या होगा कि जहाँ पे डिफेक्ट होने के चांसेस है वहीं पे क्या हो सकता है कि वो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल आपने जो पाउडर वहाँ पे जो स्प्रेड किया है ना, वो श्रिंक होके वहाँ पे एक उसका क्लस्टर यानी एक वहाँ पे पाउडर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। सो आपको एक इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ पे एक डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। द फर्स्ट स्टेप इन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज़ टू मैग्नेटाइज द टेस्ट component by a MPT equipments. If there is any defect on the surface or the near to the surface area are present, the defect will be create as the leakage as a field. अब क्या हो जाएगा लीकेज, दैट मीन्स कि जो पाउडर है वो वहाँ पे एक इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपका प्रॉप घूमेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज है। देन फाइनली ए mild iron particle which is coated with the dye pigments are applied on the specimen. अब ये पाउडर डालने की बात कर रहे हैं। These particles are attached the magnetic flux leakage filled and will a cluster, right? वो बोल रहे cluster की, वो cluster that means कि वो पाउडर इकट्ठा हो जाएगा to form an indications directly, वो cluster होकर आपको indications देंगे over the defect. These indications can be visually detect अंडर द प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस, अंडर दी प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन। ये आपको देखने के लिए प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस चाहिए, ये उसका फिगर है। तो ये दो प्रॉब है, नॉर्थ एंड साउथ, वो जो मैग्नेटिक प्रॉब है। अब ये आपको रेड कलर का मटेरियल के ऊपर दिख रहा है, जैसे आपने पाउडर स्प्रेड किया तो वो पूरा एरिया है वो मैग्नेटाइज एरिया हो जाएगा। और आपने जो फेरोमैग्नेटाइजिंग पार्टिकल का जो पाउडर डाला है वो क्या होगा कि ये मैग्नेटिज इफेक्ट की वजह से वो वहाँ पे क्लस्टर बना लेगा, इकट्ठा हो जाएगा। सो वो इंडिकेशंस है कि वहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज होने के चांसेस है, डिफेक्ट होने के चांसेस है। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल्स मीडिया। अब ये चीज़ दो तरीके से होती है कि ये ड्राई कंडीशन में भी हम लोग ये इसको पाउडर यूज़ कर सकते हैं और वेट कंडीशन में कर सकते हैं। वेट कंडीशन में करने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए कि आपको डिफेक्ट को विजुलाइज करने के लिए जो यूवी लाइट्स है ना, ये यूवी लाइट्स का हम लोग यूज़ करके वो डिफेक्ट को देख सकते हैं। सो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शंस कैन बी परफॉर्म्स यूजिंग आइदर द ड्राई पार्टिकल और द पार्टिकल विच इज सस्पेक्टेड इन द लिक्विड, ये जो मैंने आपको बताया। विद द ड्राई मेथड द पार्टिकल्स आर लाइटली डस्टेड, जो डस्ट जैसा पाउडर है ऑन दी सरफेस, उसको सरफेस के ऊपर फैला देना है। विद द वैट मेथड द पार्ट इज फ्लडेड विद द सॉल्यूशन विच इज कैरिंग द, एक जैसे मैं आपको एक जो हम लोग स्प्रे नहीं करते वो स्प्रे जैसा हम लोग दूसरा वैट कंडीशन का जो यूज़ कर सकते हैं उसमें स्प्रे मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। द ड्राई मेथड इज़ मोर पोर्टेबल, द वैट मेथड इज़ जनरली मोर सेंसिटिव सिंस द लिक्विड कैरियर विच इज़ गिव द मैग्नेटिक पार्टिकल विच इज़ एडिशनल मोबिलिटीज़। नाउ what is the advantages of the magnetic particle testing? So can detect both the surface and near subsurface defects, can inspect the part with the regular shape easily, वो किसी भी शेप में डिफेक्ट easily इंस्पेक्ट कर सकते हैं। द प्री क्लीनिंग ऑफ द कंपोनेंट इज़ नॉट एज क्रिटिकल, सरफेस को आपको जब जो भी टेस्ट करना है, जो भी सरफेस को, उसका प्री क्लीनिंग जो है वो इतना क्रिटिकल नहीं है एज कंपेयर टू द डिफरेंट इंस्पेक्शंस मेथड। द मोस्ट कॉन्टामिनेशंस विथ अ फ्लो विल नॉट हिंडर फ्लो डिटेक्टेबिलिटी। द फास्ट मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन, ये काफ़ी फास्ट मेथड है, एंड द इंडिकेशंस आर विजिबल डायरेक्टली ऑन द स्पेसिमेन ऑफ द सरफेस। कंसिडरेड द लो कॉस्ट कंपेयर टू मैनी अदर मैथड, ये काफ़ी दूसरी कंपेयर टू डिफरेंट अदर एंटिटी methods, this method is very considerable, has a low cost as compared to the other methods, right? It is very portable inspections method easily when used with the
बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट, ये पोर्टेबल है, ये इसके जो इक्विपमेंट है काफ़ी पोर्टेबल है, आप कहीं भी उसको बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स है तो कहीं पे भी कोई भी लोकेशंस के ऊपर आप उसको लेके वहाँ पे टेस्ट है वो कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ द लिमिटेशंस, कैन नॉट इंस्पेक्ट द नॉन फेरस मेटल, यानी जो भी नॉन फेरस मेटल है जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, इसके अंदर हम लोग ये मेथड है वो यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ आपका एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम्स हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, राइट। द इंस्पेक्शंस ऑफ द लार्ज पार्ट इज मे रिक्वायर द यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट्स विद द स्पेशल पावर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका कंपोनेंट बहुत बड़ा है जो जहाँ पे आपको इंस्पेक्शन करना है तो वहाँ पे एक लार्ज पावर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत हो जाती है। सम पार्ट इज़ मे बी रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ द कोटिंग, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर जहाँ पे आपको टेस्ट करना है उसके ऊपर सपोज पेंट किया गया है कोई, तो वो पेंट वो सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं ये टेस्ट। लिमिटेड सबसरफेस डिसकंटिन्यूटीज विच इज़ डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, ये जो मेथड है उसके अंदर जो सबसरफेस यानी कि अगर कोई डेप्थ में डिफेक्ट्स है, राइट, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो वो एक 0.6 mm इंच तक ही वो डेप्थ के अंदर उसको डिटेक्ट कर पाएंगा। द पोस्ट क्लीनिंग एंड द पोस्ट डीमैग्नेटाइजेशन इज़ ऑफ्टन नेसेसरी, अगर वो मटेरियल आपका जो मैग्नेट है वहाँ पे पूरे प्लेट के ऊपर घूम रहा है, राइट, विद द एप्लीकेशंस ऑफ द पावर, तो वो आपका जो मटेरियल है वो ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये जैसे प्रोसेस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद उसको डीमैग्नेटाइज करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी एक चीज़ है ये ड्रॉबैक के साथ इसके साथ आएगी। द अलाइनमेंट बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द डिटेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो चीज़ थी ये पूरी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के बारे में थी। द नेक्स्ट टेस्ट वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर विच इज़ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, राइट। आपने अल्ट्रासोनिक नाम तो सुना ही होगा, राइट। अब ये चीज़ जैसे हमने पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो पेनिट्रेंट टेस्टिंग था वो किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, तो पेनिट्रेंट टेस्टिंग था वो बेसिक जो उसका प्रिंसिपल था विच इज़ दी कैपिलरी एक्शन। अब उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। अब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, तो कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है वो बेसिकली फेरोमैग्नेटाइजेशंस, हम लोग जो फेरोमेटिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं ना, और मैग्नेटाइजेशन, तो इसका प्रिंसिपल हो गया दोनों को मिक्स करके फेरोमैग्नेटाइजेशन, द एमपीटी विच इज़ वर्किंग ऑन द फेरोमैग्नेटाइजेशन प्रिंसिपल, राइट। अब नेक्स्ट विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अब उसका थियरी और प्रैक्टिस हमको अब नेक्स्ट मेथड के तौर पे हमको देखना है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जैसे हमने पीटी का देखा, एमपीटी का देखा, द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग विच इज़ वर्किंग ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग विच इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक। अब अल्ट्रासोनिक के बारे में आपको पता ही होगा कि जिसका अल्ट्रासोनिक रेंज किसको बोलते हैं, जिसका जो अल्ट्रासोनिक साउंड किसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज़ के ज़्यादा है, राइट, 20,000 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो डिटेक्ट कर रहे हैं डिफेक्ट को वो विथ यूजिंग ऑफ द अल्ट्रासोनिक रेंज का हम लोग यूज़ करके कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ प्रॉब होगा, एक ट्रांसड्यूसर होगा, और एक जो है वो जैसे हम लोग ट्रांसड्यूसर प्रॉब से मटेरियल के अंदर एक अल्ट्रासाउंड को पास करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड अगर थ्रू आउट द मटेरियल पास हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंदर मटेरियल के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो क्या होगा कि वो जो है वो साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो रिफ्लेक्शंस हमें कहाँ पे दिखेगा, तो कि जो CRT डिस्प्ले होगी, कैथोड रे जो ट्यूब होती है ना डिस्प्ले, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में वो किसी भी अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा है तो वो CRO स्क्रीन जैसे वो टूट 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 जैसा दिख रहा है, जो वो सिग्नल्स दिख रहा है, वो सिग्नल्स वैसे ही सिग्नल यहाँ आपको मटेरियल के मिलेंगे, राइट। अब देखेंगे इसको थोड़ा डेप्थ में।
So what is the introductions of ultrasonic testing? This module which is present and introductions of NDT methods and ultrasonic testing. Ultrasonic testing is use the higher frequency sound energy. ये sound energy के ऊपर ये principle के ऊपर काम कर रहा है to conduct the examinations and make the measurements. Ultrasonic examinations can be conducted on a wide range of the varieties. Ultrasonic examinations can be conducted on the wide range of the varieties of the materials to form, including the casting, forging, weld, composites. ये सब के ऊपर जो भी प्रोसेसेस हुई है, ये सब के ऊपर हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के मदद से टेस्ट कर सकते हैं. A considerable amount of informations about the part which is being examined can be collected, such as a presence of the discontinuities, parts or the coating thickness. अगर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की मदद से किस टाइप का डिफेक्ट है, राइट, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज़ है, वो भी हम लोग उसका एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज़ है, सपोज़ कोई क्रैक है, कोई गड्ढा है, कोई हॉल पड़ गया है मटेरियल के अंदर, ये सब हमें मालूम चल सकता है. उसके बाद ये जो प्रोसेस है, इसका बेसिक एक यूनिक मैं आपको चीज़ बताऊँ तो ये कौन से डिफेक्ट है, उसके साथ उसका लोकेशन भी हमें मालूम कर सकता है. उसका लोकेशन कितनी डेप्थ पे है, कितनी बड़ी डिफेक्ट है, कितनी साइज़ है, कितनी डेप्थ पे है, वो सब चीज़ ये है जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की मदद से हम लोग यहाँ पे उसको मालूम कर सकते हैं. सो अब नेक्स्ट देखेंगे तो अल्ट्रासोनिक के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन इज़ अ वेरी यूजफुल एंड द वर्सटाइल एनडीटी मेथड. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शंस that are often cited include the depth of the penetrations and the flow detections or the measurement is superior to other NDT methods. बाकी की सारी जो NDT methods है उसके comparisons में ये मेथड है वो काफ़ी सुपीरियर है. किस लिए? क्योंकि ये जो है वो टाइप ऑफ डिफेक्ट बताएगा, डिफेक्ट कहाँ पे है वो बताएगा, डिफेक्ट की साइज़ कितनी है, कि कैसा शेप है डिफेक्ट का, वो सब हमें ये टेक्निक के मदद से मिल सकता है. यानी ये बाकी जो अभी पहले जो हमने सारी पढ़ी, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी प्रोसेस हमको, कोई भी टेक्निक हमें देता नहीं था. यानी ये एक यूनिक चीज़ है इसके अंदर. ओनली ए सिंगल साइडेड एक्सेस इज नीडेड व्हेन द पल्स इको टेक्निक इज़ यूज्ड. यहाँ आपको एक ही साइड से पूरा मटेरियल को आपको पूरे डेप्थ तक आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं. दोनों मटेरियल की साइड से आपको एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ हाईली एक्यूरेट इन determining the reflector positions and estimating the size and shape. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई, राइट. मिनिमम पार्ट प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड. ये आपको इंस्पेक्शन करने के लिए इतना कोई पोस्ट प्रिपरेशंस करने यानी प्री प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज़ प्रोवाइड द इंस्टेंटेनियस रिजल्ट. इसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है आपको. CRT स्क्रीन के ऊपर ही आपको पूरा वो रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ वो जनरेट हो जाएगा. सपोज़ आपने 1 मीटर के लेंथ के ऊपर आपने प्रॉप को घुमाया तो 1 मीटर का वो जो CRT डिस्प्ले होगा उसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपको पेपर के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं. अगर वो सेम वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ यानी जो CRT डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा है वो सेम वेवलेंथ के साथ आपको ग्राफ मिल रहा है, यानी कोई डिफेक्ट नहीं है. अगर वेवलेंथ के अंदर कोई चेंजेस दिख रहा है यानी वो लोकेशंस के ऊपर आपको डिफेक्ट होने के चांसेस है, वहाँ पे आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा. ए डिटेल्स इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द ऑटोमेटेड सिस्टम. इट हैज़ अदर यूजेस सच एज अ थिकनेस मेजरमेंट. थिकनेस अगर मेज़र करना है तो वो मेज़र हो जाएगा. एंड एडिशनल फ्लो डिटेक्शंस, राइट. अब ये टेस्ट कैसे होगा जो मैंने आपको CRT डिस्प्ले में बताया. देखो आप इसके अंदर आपको टेस्ट टेक्निक के अंदर ये पल्स इको मैंने पहले ही बताया था कि ये पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है. तो आप देखोगे तो एक रेड वाला केबल दिख रहा है, वो केबल विच इज़ कनेक्टेड टू द प्रॉब, राइट. अब ये प्रॉब है वो क्या है कि प्लेट है, प्लेट के ऊपर वो पूरा प्रॉब है वो घूम रहा है, राइट.
आप प्रॉप के नीचे से, नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन से वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है वो पास होके क्या करेगा कि नीचे वाली जो सरफेस है, राइट, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो नीचे वाली सरफेस से देखिए आप, जो ब्लू रेज आपको एरोज दिख रहा है वो नीचे वाले, इनिशियली क्या हो रहा है कि वो इनिशियली नीचे की सरफेस को टच करके आ रहा है। अगर सपोज़ कोई ब्लैक कलर की आपको क्रैक दिख जाती है या फिर कोई भी साइज़ की क्रैक दिखेगी तो क्या होगा कि वो अल्ट्रासाउंड वहीं से वापस आ जाएगी, यानी आपको वो रिफ्लेक्शन है वो ट्रांसड्यूसर, यानी कि एक जो 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 प्रॉप के अंदर से आप अल्ट्रासाउंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वही प्रॉप है वो जो इको सिग्नल है उसको रिसीव करके वो रिसीवर को देगा, वो स्क्रीन के ऊपर उसका ट्रांसमिशन करेगा। तो अगर पूरी डेप्थ तक वो जाता है तो आपको पूरा वो इनिशियल पल्स मिलेगा, राइट, पूरा पल्स वेवलेंथ के साथ मिलेगा। अगर कोई क्रैक है तो आप देखिए जो CRT स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा क्रैक इको दिख रहा है, राइट, तो वहाँ पे इतनी डेप्थ तक वो जो था वो साउंड वेवलेंथ वहाँ पे गया है, यानी वहाँ पे कोई डिफेक्ट होने के चांसेस है। दिस इज़ द एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इन pulse echo testing, a transducer is sent out a pulse of the energy and the same or a second transducer which is listens and reflect the energies echo, वो reflect करेगा, right, एक भेजेगा दूसरा reflect करके CRT को देगा। The reflections occur is due to the presence of the discontinuities or the defects and the surface of the test articles. The amount of the reflected sound energy, the amount of reflected sound energy is displayed versus the time. वो डिस्प्ले के ऊपर डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ऊपर वो प्लॉट होगा, तब कितने डिस्टेंस के ऊपर डिफेक्ट थी वो आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा और टाइम के साथ मालूम हो जाएगा, राइट, कितने टाइम पे डिफेक्ट आई थी। आपको इनिशियल टाइम और एंड टाइम आपको नोट कर लेना है और डिस्टेंस के हिसाब से आप वो पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच इज़ प्रोवाइड द इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशंस अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फीचर्स दैट रिफ्लेक्ट द साउंड। ये चीज़ हो गई। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं, कैसे वर्किंग करता है वो अपना मैंने आपको एक्चुअल फिगर के साथ बताया। इट इज़ ए सेंसिटिव टू बोथ द सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी, दोनों सब सरफेस और पूरा डेप्थ तक वो डिसकंटिन्यूटीज को मेज़र कर सकता है। द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन फॉर द फ्लो डिटेक्शंस और द मेजरमेंट इज़ द सुपीरियर टू अदर NDT मेथड्स। वन सिंगल साइड एक्सेस वो मैंने पहला मिनिमम पार्ट प्रिपरेशंस वो मैंने पहले आपको डिस्कस किया। इट इज़ प्रोवाइड द इंस्टेंटेनियस रिजल्ट, वो इमीडिएटली रिजल्ट दे सकता है। इट इज़ दी नॉन हैज़ार्डियस टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के लिए जो है वो नॉन हैज़ार्डियस है, इसमें कुछ ऑपरेटर को डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है, राइट। इट इज़ the other uses such as a thickness measurement and the flow detections. The equipment can be highly portable or highly automated. काफ़ी portable और जो बोल सकते हैं कि highly automated instrument है, वो result खुद आपको बना के दे देगा। अब इसके disadvantages की बात करें तो disadvantages में क्या चीज़ हो सकती है। The surface is must be accessible to the transmit the ultrasound. ऐसी सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, सरफेस के ऊपर गड्ढे खड्डे जो चीज़ होगे तो वो प्रॉब है वो एक्यूरेटली वहाँ पे पास नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसी सरफेस होनी चाहिए कि वो अल्ट्रासाउंड को पास कर सके। द स्किल एंड द ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यू रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टेस्टिंग। ये एक आपको ऑपरेटर का एक स्किल चाहिए और पूरा ट्रेनिंग चाहिए ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए। इट नॉर्मली रिक्वायर ए कपलिंग मीडियम टू प्रमोट द ट्रांसफर ऑफ द साउंड, राइट। द मटेरियल दैट इज़ रफ इरेगुलर इन द शेप, मैंने आपको पहले बताया, तो उसके ऊपर वो इंस्पेक्ट हम करना डिफ़िकल्ट्स हैं, राइट। द लिनियर डिफेक्ट और द एंटेड द पैरेलल टू द साउंड बीम इज मे बी अंडर डिटेक्ट। The reference standards are required for both equipment calibrations and the characterizations of the flow. Equipment को भी आपको एक
रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा ये कि इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं। और ये जो आपने जो कोई भी डिसकंटिन्यूटीज़ है तो वो डिसकंटिन्यूटीज़ का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए भी एक तरीके का स्किल चाहिए, राइट। और लास्ट विच इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग विच इज़ दी ये इसका टेस्टिंग की अब एप्लीकेशंस का बात करें तो एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी इंटीरियर और एक्सटीरियर एप्लीकेशंस है। प्रेशर वेसल्स के अंदर कोई बड़ा थिकनेस वाला बॉयलर्स है, आपका ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स है, जो भी जहाँ पे जॉइंट्स है, राइट। हमने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ का मैंने बात किया था कि जहाँ पे कोई सारी प्रोसेस हो रही है, कास्टिंग प्रोसेस हो रही है, वेल्डिंग प्रोसेस हो रही है, फोर्जिंग प्रोसेस हो रही है, फैब्रिकेशन प्रोसेस हुई है, वो सारी जगह पे आपको वो जो प्रोसेस है वो विदाउट एनी डिफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसका मेन जो एडवांटेजेस हैं वो ये एडवांटेजेस हैं, ये डिफेक्ट तो फाइंड आउट करके देता ही है, उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है, उसका एग्जैक्ट शेप क्या है, कितनी डेप्थ में है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशंस हमें निकाल के एक साथ दे रहा है। सो इसका यूज़फुलनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 टेक्निक हैं वो पढ़ने की कोशिश की है। फर्स्ट विच इज़ द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग और सेकंड विच इज़ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, राइट। The magnetic particle testing which is working on the ferromagnetization principle, like the ultrasonic testing which is working on the piezoelectric principle। ये 2 प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। आप कहीं भी एग्ज़ाम में हो तो शुरुआत आपको लिखने की वहीं से करनी है, दिस प्रोसेस विच इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल और दिस प्रिंसिपल, राइट। बाकी आप थोड़ा ये वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने इसको काफ़ी इजी लैंग्वेज के अंदर आपको रिकॉर्ड करके दिया है ताकि आप अपने तरीके से उसको सुन के थरोली उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर भी अगर आपको ये 2 प्रोसेस के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। मैं इमीडिएटली उसका जैसे देखूँगा तो उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर्स। इन टुमारोज लेक्चर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर 2 डिफरेंट टेक्निक ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये लेक्चर सुनने के बाद सभी जो 12 बच्चे हैं आपके क्लास में, सारे 12 के 12 बच्चों को अपना एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे लिखना है, राइट। So thank you so much for watching this video.